Magnetism and matter. The last part of this topic is magnetization of materials. And on the basis of the magnetization behavior, we will classify them into again further diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic substance. So what causes the magnetization, or what is magnetization? In the presence of some external magnetic field or magnet, there will be a temporary magnetism acquired by the material, by the temporary magnetic field will be associated with the particles, with the materials. Example, copper, iron, they acquire some magnetic property which is called magnetization. हम पहले mathematical understanding करेंगे formula and then we will classify the materials. अगर कोई भी हमने बाहर फील्ड नहीं लगाई हुई है, दिस इज सपोज सम मेटल, मे बी कॉपर, आयरन, कुछ भी हो, so there are many unpaired electrons. कुछ electrons होंगे which will be spinning electrons like a circular current की अपनी magnetic field होती है, magnetic dipole moment होता है, but they will be randomly oriented in absence of external magnetic field. अगर हमने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई तो ये सारे डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे. All the dipoles are randomly oriented such that the net dipole moment is always zero. Net magnetic dipole moment is zero. Reason because के जो dipole moments हैं, those are randomly oriented, just like electrons are randomly moving in the absence of any external electric field, और उनकी resultant net average velocity वो zero. Similarly, कोई भी material हो, किसी भी type का material हो, उसके अंदर बहुत सारे unpaired electrons हैं जो spin भी कर रहे हैं, जिनका अपना magnetic moment भी है, but still it does not possess any magnetic property because the net dipole moment is zero. जब हम किसी मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्रेस करेंगे इन एनी मटेरियल, तो हम सारे डाइपोल मोमेंट तो ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए देयर इज अनदर वेक्टर, another concept, another quantity is defined called as मैग्नेटाइजेशन वेक्टर. इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं, ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल आई. बिकॉज हम मटेरियल की बात करें, मटेरियल का साइज कुछ भी हो सकता है, सो वी ऑलवेज एक्सप्रेस द प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, it is defined as मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. किसी भी मटेरियल के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट per unit volume is defined as magnetization vector. Dipole moment per unit vector जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ही ज्यादा magnetization हो गया. More will be the magnetic nature or magnetic behavior of that material, जो कि zero होगा जब तक हम बाहर से कोई field नहीं लगाते. No external field, no magnetization. No magnetization means the material does not possess any magnetic property. इसकी यूनिट क्या होगी? डाइपोल मोमेंट था कुछ एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम है मीटर क्यूब.
so that becomes ampere per meter. अब अगर हम बाहर से कोई फील्ड लगा देंगे क्या होगा फिर? In the when external field is applied, dipoles always align itself in the direction of magnetic field. क्यों align करते हैं? क्योंकि only then it will acquire stable equilibrium, minimum potential energy state. So when external magnetic field is applied, suppose that field is B naught. किसी के स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं इन दिस कमिंग वीक और समथिंग? सर मैं तो नॉन अटेंडिंग। फर्स्ट अक्टूबर सिलेबस पूरी बुक। हाँ वही मतलब फर्स्ट बुक कंप्लीट। किसी का एग्जाम अभी रिसेंटली दिस वीक और नेक्स्ट वीक? एपी सर ने अल्टरनेटिव करंट तक शायद खत्म कर दिया है। अनुराग, व्हेन इज योर एग्जाम? सर 20th से स्टार्ट है। और फिर इसका सिलेबस कितना है? सर पूरी बुक तो नहीं है, फर्स्ट टर्म का ही हमें आधा कराया है। तो ये फर्स्ट टर्म मतलब पूरी बुक आ रही है ना? हाँ। ओके राइट। लास्ट के जो दो चैप्टर है एसी एंड ईएम वेव्स वो आपको एपी सर की क्लास से करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी विल बी फिनिशिंग इन दिस क्लास टिल देन। So when external field is applied, it causes dipoles to align in the direction of external field so that वो अपनी stable equilibrium position में आ जाते हैं। And when they are in stable equilibrium, उन सबके dipole moment ऐड होके एक resultant dipole moment बना देंगे। That means inside the material there will be a magnetic property or a small magnet kind of thing will be formed, which will produce its own magnetic field. Again, जब तक बाहर कोई फील्ड नहीं थी ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे और एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। अभी हमने बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी बिकॉज ऑल द डायपोल्स वांट टू अलाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड टू एक्वायर स्टेबिलिटी टू कम इन द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। The dipoles rotate and align itself in the direction of external magnetic field so that अभी इनके dipole moment ऐड हो जाएंगे and this will acquire a resultant dipole moment. Resultant dipole moment होने का मतलब it will be behaving like a magnet which has its own magnetic behavior or magnetic field Bm. Bm is the field produced by this dipoles inside. B naught is the magnetic field जो हमने बाहर से लगाई है. So when material is kept in external field B naught, एक फील्ड B naught बाहर वाली थी, एक फील्ड उसने अपने अंदर खुद डेवलप कर ली Bm. So the net magnetic field will be B naught plus Bm. Net magnetic field in this material become B naught plus Bm. Net magnetic field in the material, it will be B naught external plus Bm due to magnetization. दोनों का resultant that will be the net magnetic field. Right? अब ये Bm किसकी वजह से आई? Bm is because of the magnetization. Bm is due to the magnetization of inside जो कि पहले zero थी. Bm is magnetic field due to magnetization. तो ये जो मैग्नेटाइजेशन अंदर हो रहा है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर m, which means
more magnetization, more will be the magnetic field. So अंदर जो ये magnetic field develop हो रही है BM, this will be directly proportional to magnetization vector. External field apply करने पे net field will become B naught plus BM, और इसमें जो BM वाला component है, this is because of the magnetization, और magnetization vector is capital M. On applying external magnetic field B naught, अंदर एक field develop हो गई थी BM. BM is because of the magnetization, और magnetization को हम express करते हैं in the terms of magnetization vector. So magnetic field due to this magnetization BM is directly proportional to magnetization vector. BM depends upon how strong is the magnetization inside. More dipole moment are aligned, more will be the magnetic field. Constant of proportionality यहाँ पे आ जाता है mu naught. BM is mu naught times M. BM is mu naught times M. तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है B नॉट प्लस BM, इसमें BM को वी राइट एज म्यू नॉट टाइम्स M. सो B नॉट को भी हम कुछ ऐसे टर्म्स में चेंज कर देते हैं, म्यू नॉट टाइम्स समथिंग, सो दैट डायमेंशनली वो एक जैसे दिखे, कंसिस्टेंट दिखे डायमेंशनली. सो वी चेंज दैट B naught in terms of a new vector called as magnetic intensity. किसकी magnetic intensity? Another vector is defined, और वो सिर्फ इसलिए डिफाइन किया हमने क्योंकि BM को म्यू नॉट टाइम्स M के फॉर्म में लिखा हुआ है. सो ऐसे ही B नॉट को भी लिखना है, magnetic intensity of external field, which is B naught, is written as 1 by mu naught times external magnetic field. 1 by mu naught times external magnetic field. External magnetic field कितनी है? B naught. So क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसको लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स H के रिस्पेक्ट में. इस वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ एक पर्पस था, क्योंकि BM इज म्यू नॉट टाइम्स सम क्वांटिटी, सो हमें B नॉट को भी कुछ उसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, सो दैट वी कैन रिलेट देम. BM डिपेंड करती है B नॉट पे. एक्सटर्नल फील्ड जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा मैग्नेटाइज्ड फील्ड. लाइकवाइज अगर हम इसको H प्लस M के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये H किसके वजह से? H इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. M किसका है? अंदर वाली मैग्नेटाइजेशन वाली फील्ड का. मैग्नेटाइजेशन किसने किया? एक्सटर्नल फील्ड ने. So this magnetization vector, capital M, which is the magnetization vector, is directly proportional to the external magnetic intensity. For any material, magnetization will depend upon how strong is the magnetic intensity of external magnetic field. So जब हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये दोनों तो अभी सेम डायमेंशन है, H प्लस M ऐड कर रहे हैं, दोनों का सेम डायमेंशन है. इसमें से किसी भी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन आएगा वो डिपेंड करता है उस मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी पे. दिस काई, वेयर काई इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, written as chai but pronunciated as kai, is called magnetic susceptibility. How susceptible that material is for the magnetic field, how much magnetic field it absorbs inside. Magnetic susceptibility of material. That is the property of a material. A material is diamagnetic, ferromagnetic or paramagnetic, will be decided by the value of chi. सर ये काई का सिंबल कैसा है? X में पूछ निकाल दो थोड़ी सी. It's like
मतलब थोड़ा x को नीचे टेल. Chi is a constant, dimensionless constant. It represents the magnetic susceptibility of that material. जिसका chi ज्यादा होगा उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसका chi कम होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेस होगी. क्लियर? यस सर. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, सो क्लासिफिकेशन से पहले हम यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको. m को chi टाइम्स h, it becomes mu naught into h plus chi times h. chi को h को कॉमन, so 1 plus chi times h and 1 plus chi is mu r, which is called relative permeability of that medium. जैसे वहां पर हम relative permittivity बोलते थे, this will be called relative permeability. और relative किसके रेस्पेक्ट में? वो बेटा म्यू नॉट था, अब ये म्यू आर है. म्यू आर होगा कुछ नंबर 10, 12, 100. is called relative permeability, is the ratio of permeability of the medium to permeability of space. Mu naught into mu r is defined as mu v is equal to mu times h. ये रिलेटिव होता है रेशियो ऑफ दैट मीडियम टू वैक्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू नॉट इनटू म्यू आर. ये एक मैथमेटिकल कुछ छोटा सा डेरिवेशन था. इन टर्म्स ऑफ दिस वी विल नाउ क्लासिफाई द अदर मटेरियल, वी विल एक्सप्रेस द अदर मटेरियल्स बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ chi. Right, so classification of material is done on the basis of value of chi. ये रफ कर देता हूं मैं, थोड़ा समझ लेना क्या हुआ. पहले हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई तो सारे रैंडम थे, कैंसिल आउट, नो मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, सब अलाइन होने लगे. अलाइन होते हैं क्यों? ताकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, स्टेबिलिटी हो. और सेम डायरेक्शन में आ गए तो सबके डायपोल मोमेंट ऐड हो जाएंगे, एक मैग्नेट बन जाएगा, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड, एक बाहर की फील्ड, दोनों ऐड होके बी नॉट प्लस वी एम. Bm डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फील्ड. Bm को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के टर्म्स में, B नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में. H एक्सटर्नल फील्ड की है, M बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन जो अंदर हो रहा है. अंदर मैग्नेटाइजेशन किसने किया? बाहर वाली फील्ड ने किया. सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कितना मैग्नेटाइजेशन होगा वो मेटेरियल डिसाइड करेगा, और उस मेटेरियल की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ससेप्टिबिलिटी कॉल्ड एज chi. अब तो एमसीक्यू है, डेरिवेशन का आएगा टर्म 1 का. स्कूल के लिए तो नहीं बैठा, अपनी शांति के लिए, अपनी समझ के लिए जरूरी है दैट यू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, कहाँ से ये डेरिवेशन, क्योंकि इसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें हमें इन सारे टर्म को यूज करना पड़ेगा. ससेप्टिबिलिटी से म्यू आर से म्यू, और म्यू से नेट मैग्नेटिक फील्ड. अंडरस्टूड? यस सर. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स. नेक्स्ट हेडिंग, classification of magnetic materials. Materials का classification अलग अलग behalf पे करते हैं, अलग अलग properties के behalf पे. Now we are doing in terms of magnetic behavior. Yes, magnetic behavior मतलब वो magnetic field में attract होता है, repel होता है,
थोड़ा रिपेल होता है, ज्यादा रिपेल होता है, इट्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड, so on. The behavior of material in the external magnetic field will be expressed by these properties. Classification of magnetic material. First, magnetic material, paramagnetic. Paramagnetic substances केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़े होंगे, पढ़े? What is paramagnetic substance? Okay, according to chemistry. Paramagnetic substance कौन सा होता है? रुद्र, paramagnetic substance? Okay, anyone? Paramagnetic substances? क्या थी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक की? नहीं क्या अभी केमिस्ट्री में शायद? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस केमिस्ट्री में उनको बोलते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Those which have unpaired electron, they exhibit paramagnetic nature, d block वाले भी। Those compounds which have unpaired electrons in the orbital, so वो केमिस्ट्री का है। अभी फिजिक्स में क्या कैसे डिफाइन करते हैं? In terms of the magnetization, external field के respect में, so the materials which are weakly magnetized, मतलब थोड़ा सा ही magnetization होता है उसमें, which are weakly magnetized in the direction of external magnetic field, in the direction of external magnetic field are called paramagnetic. मैग्नेटाइज होंगे लेकिन थोड़े से हल्के फुल्के मैग्नेटाइजेशन, हल्का फुल्का मैग्नेटाइजेशन का मतलब एक्सटर्नल फील्ड को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, स्लाइटली। 1 टेस्ला की फील्ड लगाई इसने 1.1 1.01, और केमिस्ट्री में जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, यस, कॉपर क्लोराइड, कॉपर एटम में तो शायद दोनों पेयर हो जाते हैं, CuCu, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन, सोडियम, जिनमें थोड़ी सी मैग्नेटाइजेशन हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, दोज आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मैथमेटिकल टर्म्स अगर देखेंगे तो पैरामैग्नेटिक for paramagnetic substance, its susceptibility is small but positive. Susceptibility positive होती है, मतलब थोड़ा सा ये मैग्नेटिक फील्ड को अब्सॉर्ब करते हैं, but not much. Like 0.001 types. So susceptibility is small but positive. Mu r is 1 plus chi.
So mu r is greater than 1. Slightly greater than 1. Mu will be greater than mu naught. दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें अगर H से, so net magnetic field B will be greater than V naught. Net magnetic field inside the material is mu times H, and the applied magnetic field is mu naught times H. और ये mu होता है mu naught into mu R. ये तो मैथमेटिकल नंबर्स आ गए, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज. नाउ प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटेरियल की? ये तो उनके कांस्टेंट की वैल्यू है. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी कुछ 0.00100165. सर इसकी ये वाला रिलेटिव पार्ट बोर्ड में परमिटिविटीज नहीं आ रहा ना? तो छोड़ दे, नहीं सर, कर ही लेते हैं. कर ही लेते हैं. हाँ गुड, छोड़ते कुछ नहीं, हम एक्स्ट्रा ही पढ़ते हैं. B is greater than B naught. Properties. पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, थोड़ा बस बोर्ड में लिखना नहीं है इसलिए डायग्राम से समझ लेते हैं, थ्योरेटिकल पेपर वैसे भी नहीं है. सपोज ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पर हमने एक सब्सटेंस रख दिया व्हिच इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सो इफ यू पुट अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, वो क्या करेगा? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा बढ़ा देगा. When kept in the external magnetic field, it increases slightly the magnetic field. अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है स्लाइटली, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर फील्ड लाइन थोड़ा पास पास आ जाएगी. The density of magnetic field line will slightly increase. Magnetic field line, magnetic field is slightly increased अगर हमने किसी जगह पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया. उसके रखने से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. सो इट इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड. सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है, सो मतलब ये हमेशा वहां पे मिलेगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है. हमेशा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या रीजन में जाने की कोशिश करेगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है. अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, then it will always move towards the stronger magnetic field region. So ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर हमेशा in uniform magnetic field it always increases slightly the magnetic field. अगर non uniform magnetic field में कोई paramagnetic substance is free to move, it will be moving in the direction of external, in the from low to high magnetic field region. दोस्तों अगर ऐसे कोई नॉन यूनिफॉर्म टाइप मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है. सो व्हेन एनी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज रिलीज्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैज टेंडेंसी टू गो फ्रॉम लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन. Paramagnetic substances in non-uniform magnetic field, it moves from low to high magnetic field region. This is the second property.
it moves from high to low, sorry low to high, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, it moves from low to high magnetic field region. राइट. थर्ड प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, इसी के कुछ इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल, लाइक सपोज अगर हमने कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया पाउडर फॉर्म में इन अ पोर्सलेन ट्यूब, और if we apply some magnetic field, so magnetic field जहां पर है इन दोनों पोल्स के बीच में, the most of the material will be collected in between this magnetic field region. सारा का सारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहीं बीच में आ जाएगा. That's the second property only. ऐसे अगर हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई तो दोनों तरफ वाटर का लेवल सेम है. दिस इज सम पैरामैग्नेटिक लिक्विड. If suppose magnetic field is applied in one of the side of this U-tube, it will increase the level उस साइड में लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, और दूसरी तरफ डिक्रीज हो जाएगा. Because paramagnetic substance have tendency to move towards the magnetic field region, stronger magnetic field region. सर वो थर्ड वाली समझ नहीं आई. जो सेकेंड है वो थर्ड है. ऊपर पाउडर था, नीचे लिक्विड है. हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, नॉर्थ साउथ के बीच में there is magnetic field. जहाँ मैग्नेटिक फील्ड उधर ही ऊपर जाएगा, और राइट वाले साइड में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी. सो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव करना स्टार्ट कर देगा. समझ गए? यस सर. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, ये थर्ड वाली सॉरी सेकेंड वाली प्रॉपर्टी के ही कुछ एग्जाम्पल टाइप समझ सकते हैं आप. जब भी हम कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में in any region if we apply some magnetic field, so paramagnetic substance हमेशा strong magnetic field वाले साइड में मूव करके आ जाएंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जो अलाइनमेंट हुआ था कुछ डायपोल्स का, उसको फिर से एनर्जी मिलेगी और उनका अलाइनमेंट फिर से ब्रेक होने लग जाएगा. सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन कम होने लग जाता है. is represented by Curie's law. The magnetic susceptibility of ferromagnetic substance is inversely proportional to its absolute temperature. The magnetic susceptibility of paramagnetic substances is inversely proportional to temperature. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर कम होने लग जाएगा, इसके मैग्नेटाइजेशन कम होने लग जाएगा. दैट्स द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेट. क्यूरी वही है, मैरी क्यूरी, द वन हु discovered the uranium and some radioactive phenomena. Marie Curie and Pierre Curie. Right? Second. So पहला क्लासिफिकेशन हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एनर्जी बढ़ाने पर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देते हैं. एंड एज अ रिजल्ट, इसका एक्सप्लेनेशन क्या था? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? बिकॉज इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सो डायपोल्स है, और डायपोल्स का अलाइनमेंट हो जाता है जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं.
that causes a magnetic field to appear in this material. Second, next सर classification. बोलो बेटा. सर Yes, क्यूरियम Rudra. तो एक सर क्यूरियम एलिमेंट भी है ना एक? यूरियम एलिमेंट भी है. यस सर, रेडियोएक्टिव. यूरियम एलिमेंट भी है, रेडियोएक्टिव. क्या एटॉमिक नंबर? सर इतना पता है, उससे पहले आता है प्लूटोनियम से पहले. अच्छा. नहीं एक्टिनियम नया क्यूरियम. डिस्कवर. यस सर, एक्टिनियम क्यूरियम प्रोटैक्टिनियम सब साथ में. वेरी गुड वेरी गुड. यस यस यस. एक्टिनाइट सीरीज में आता है. सेकंड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में. सेकंड इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं. The materials which are weakly magnetized opposite to the external field. The materials meaning second classification में जो पहला था पैरामैग्नेटिक, उसी में second is diamagnetic substance. Classification of material, there are three type of material: paramagnetic, ferromagnetic and diamagnetic. हमने पैरामैग्नेटिक समझ लिया जो एक्सटर्नल फील्ड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. Diamagnetic substances, the materials which are magnetized opposite to the external field. Which are magnetized opposite to external field and slightly reduces the magnetic and slightly decreases the magnetic field. Slightly decreases the magnetic field. ओके अब इसको ऐसी क्या प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी से कि ये स्टेबल नहीं हो रहा है, मतलब तभी तो ये अपोजिट हो गया. सेम डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में आते हैं इसलिए एनर्जी कम हो जाती है. यहाँ पर अपोजिट अलाइन हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है ताकि वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए और मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई एंड दैट्स व्हाई द एक्सटर्नल फील्ड इज रिड्यूस्ड. ऐसा क्या पंगा है यहाँ पे? What is the problem with stability? इनको stability क्यों नहीं चाहिए? My question is clear. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एक्सप्लेनेशन ये था कि जब फील्ड लगाते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. दे वांट स्टेबिलिटी. अभी यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाई हमने बट फिर भी वो एग्जैक्टली अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी थीटा 180 डिग्री पे जाके रुके. सो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया. थीटा 0 स्टेबल, थीटा 180 अनस्टेबल. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई. सो हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट दे विल स्टे इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग लगाई बाहर वाली हमने. इसने मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कम करेगी वो अलग बात है. दिस मटेरियल विल रिड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज वो एक्सटर्नल के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. एनी एक्सप्लेनेशन? एनीवन? क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना? सबको स्टेबिलिटी चाहिए, इसको क्यों नहीं चाहिए? Why it is becoming unstable? Yes, anyone? इसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एक्सटर्नल से कम हो गई. बी नॉट माइनस हो गई. क्यों? क्योंकि ये अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड है इसलिए.
because it is opposite to the external magnetic field. Yes, anyone? एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट क्यों अलाइन हुआ है? इसको क्या समझते हैं? स्टेबिलिटी से है कि नहीं है? मतलब हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट इट गेट्स अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड? आया समझ में किसी को? समस्या कुछ नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, इट विल बी अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने, एक ही ऑर्बिटल में जो दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिन अपोजिट होती है। एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इन दोनों में अगर एक स्टेबल में है तो दूसरा अनस्टेबल में आ ही जाएगा अपने आप, बिकॉज दे आर ऑलवेज अपोजिट स्पिनिंग, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जो सेम डायरेक्शन में है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, उसकी एनर्जी कम हो गई, उसका डायपोल मोमेंट कम हो गया, क्योंकि डायपोल मोमेंट ऑफ एनी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल वाज QVR/2 EVR/2, V छोटा तो डायपोल मोमेंट कम। समझ आया? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर्ड में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। एक स्टेबल होगा, जो स्टेबल है उसकी एनर्जी कम, उसका डायपोल मोमेंट छोटा हो जाएगा। जो अनस्टेबल है उसका डायपोल मोमेंट बड़ा होगा, तो यानी रिजल्टेंट आएगा हमेशा अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। प्रॉब्लम स्टेबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम है क्योंकि हमेशा एक अपोजिट में भी इलेक्ट्रॉन होगा जिसका डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा और सेम डायरेक्शन वाले का कम हो जाएगा। नेचर के लॉ फेल नहीं होते, हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में सबको चाहिए। एनर्जी मिनिमम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, बट एक स्टेबल तो दूसरा अनस्टेबल अपने आप हो जाएगा। दैट्स व्हाई देयर इज अपोजिट मैग्नेटाइजेशन, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक्स के एग्जांपल क्या क्या थे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जांपल: बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक। बिस्मथ, लेड, जिनमें सारे के सारे, अब कॉपर में दो अलग अलग होते हैं ना, क्यूप्रस क्यूप्रिक सॉल्ट में, बट कॉपर जब मेटल ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो Cu+ जो सबसे बाहर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है किसी को? कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिस्टर व्योम, यस कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तो स्टैंडर्ड है, कॉपर एंड क्रोमियम, दोनों में कुछ कुछ कहानी होती है। यस, कोई तो बता यार। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 4:3d9, वेरी नाइस। बट 3d9 नहीं होता, वो हमेशा 3d10 में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज फुल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, है ना। सिमिलरली कुछ क्रोमियम के साथ भी होता है, वो 3d4 4s2 की जगह पे 3d5 4s1 हो जाता है। सो लाइकवाइज हियर दिस कॉपर वो 3d10 4s1 है, बट 4s1 दूसरे के 4s1 से मिलके हमेशा पेयर्ड बन जाता है, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन। एटम में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते ना, वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो हम पूरे पूरे मॉलिक्यूल के लिए बिहेवियर चेक करेंगे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर। इसलिए यहाँ पर कॉपर इज डायमैग्नेटिक। जो पिछली बार लिखा था वो क्यूप्रस क्लोराइड था, ठीक
ठीक है, बाकी केमिस्ट्री आपको आती होगी, केमिस्ट्री इज ऑलवेज अ मिस्ट्री, सो यस फाइन एक्सेट्रा, और बहुत सारे कुछ कंपाउंड। इनमें प्रॉब्लम क्या है, नॉट प्रॉब्लम, द प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट यानी थोड़ा सा कैंसिल करके एक्सटर्नल फील्ड को कम कर देते हैं। सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए उसका जो ससेप्टिबिलिटी है, फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, इट इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, स्मॉल बट नेगेटिव। नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये लेता नहीं है, उल्टा और कम कर देता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड को, स्मॉल बट नेगेटिव। सो म्यू आर विच वाज द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1 प्लस काई, 1 प्लस काई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो छोटा हो गया, म्यू आर विल बी लेस देन 1। रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से छोटी, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट, इसका जो फील्ड होगी वो वैक्यूम से भी कम हो जाएगी। म्यू इज लेस देन म्यू नॉट एंड बी विल बी लेस देन बी नॉट, यानी जितनी एक्सटर्नल फील्ड थी उससे इसके अंदर की फील्ड थोड़ी कम हो जाएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्लाइटली रिड्यूस्ड इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, या किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा कम कर देता है। इट स्लाइटली डिक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द cancellation or due to the opposite direction dipole formation, magnetic dipole alignment in opposite direction, correct? Okay, yes, properties, पहली प्रॉपर्टी तो वही, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देते हैं। कम कर देते हैं का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो पैरेलल इक्वी स्पेस थे उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी फॉर अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पहली, सो वो सारी पुरानी वाली प्रॉपर्टी है, उसकी टर्मिनोलॉजी में बस थोड़ा सा डिफरेंट का डिफरेंस लिखा है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिखना है। अगर हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया तो ये फील्ड लाइन को इंक्रीज ना करके, फील्ड को इंक्रीज ना करके डिक्रीज करेंगे, और डिक्रीज करेंगे का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी स्लाइटली रिपेल्ड फ्रॉम इट। एक्सटर्नल मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक्सटर्नल फील्ड को कम कर देती है, एक्सटर्नल फील्ड को कम करती है मतलब रिपेल करती है, रिपेल करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी सी दूर हो जाएंगी, डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वहां पे मूव करेगा जहां पे फील्ड कम है, सो इट विल मूव फ्रॉम हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन, दैट्स द डायमैग्नेटिक substance, high magnetic field to low magnetic field region, that's the tendency of diamagnetic substance to move towards low magnetic field region। तो वो पाउडर और वो लिक्विड भी वैसे ही हो जाएगा। If it is a diamagnetic substance in powder form, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो वहां से बाहर की तरफ भाग जाएगा, बिकॉज इट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की टेंडेंसी मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने की होती है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर। लाइकवाइज, यस, कोई डाउट, किसी ने पूछा कुछ? ओके, अगर हमने कोई डायमैग्नेटिक लिक्विड ले लिया
और उसमें लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड। ऑन दैट साइड व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, वहां पर लेवल नीचे डाउन हो जाएगा, इट विल राइज ऑन द अदर साइड। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी ससेप्टिबिलिटी पे या उसके मैग्नेटिक बिहेवियर पे। रीजन क्या है? टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक जितना ओरिएंट होगा स्टेबल अनस्टेबल से, दूसरा उतना ही अपोजिट। सो एज अ थर्मोडायनेमिक stability, there is no change in its potential energy. Potential energy में change नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? That it will not lose or gain the magnetic dipole moment. वो फिर से वहीं पर वापस आ जाएगा। So on increasing the temperature, susceptibility is constant. Susceptibility is independent of temperature for diamagnetic substance. Magnetic susceptibility is independent of temperature. Susceptibility is independent of temperature. It's negative but constant. करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये तो हो गया डायमैग्नेटिज्म। कुछ स्टेटमेंट्स हैं डायमैग्नेटिज्म के लिए, लाइक डायमैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। व्हाट डज दैट मीन? जितने भी मटेरियल्स हैं उन सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, अनपेयर्ड केवल जाके लास्ट ऑर्बिटल वाला होता है। सो डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल, डायमैग्नेटिज्म सभी में प्रेजेंट है, केवल लास्ट वाले एक आधे इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं जिनमें, उसमें वो पैरामैग्नेटिज्म ओवरकम कर लेता है डायमैग्नेटिज्म। Diamagnetism is universal property. Diamagnetism is universal property. First, second is स्पेशल टाइप का कुछ इफेक्ट होता है कॉल्ड एज मेसनर इफेक्ट। मेसनर इफेक्ट, जितने भी सुपर कंडक्टर मटेरियल्स हैं, व्हाट इज सुपर कंडक्टर? सुपर कंडक्टर्स जिनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो, अगर हम एक बार करंट एस्टेब्लिश कर दें तो वो हमेशा के लिए ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाती है। इट इज फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रेजिस्टेंस इज जीरो। ऑल सुपर कंडक्टर्स एग्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का मतलब एक्सटर्नल फील्ड को कम नहीं करते, केवल उसको खत्म कर देते हैं। एक्सटर्नल फील्ड इज कंप्लीटली गॉन। सुपर कंडक्टर्स एग्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का मतलब हुआ एक्सटर्नल फील्ड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं मैग्नेटिक Sir, in फील्ड से। alloys, एलॉयज, yes, sir. एलॉयज के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा आपने किसका किसका मिलके एलॉय बनाया है, कौन से वाले मटेरियल है। कुछ फेरोमैग्नेटिक है, कुछ पैरामैग्नेटिक है, कुछ वो उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा। ऐसा कोई जनरल टर्म नहीं है। करेक्ट? सो दैट इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। All superconductors exhibit perfect diamagnetism. Superconductor क्या होता है? Normal conductor close to 0 Kelvin. At extremely low temperature हर एक कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है। जैसे 10 केल्विन पे आयरन, 4 केल्विन पे लेड। ऑल 4 केल्विन मतलब -269 डिग्री सेल्सियस।
all superconductors exhibit perfect diamagnetism. परफेक्ट डायमेग्नेटिज्म का मतलब हो गया काई इज -1, म्यू आर इज 0, म्यू इज 0, बी इज 0। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी भी हो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 ऑलवेज। मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये सुपरकंडक्टर की। सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं? एनी नॉर्मल कंडक्टर एट टेम्परेचर क्लोज टू 0 केल्विन। ओके, यस। सो ये हो गया डायमैग्नेटिज्म। थर्ड मटेरियल इज, थर्ड टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ferromagnetic substance is the one which shows very strong magnetization। very strong magnetization का मतलब हो गया एक्सटर्नल फील्ड को 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, 1000 टाइम्स के ऑर्डर में। मतलब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई 1 टेस्ला और उसने फील्ड बना दी 100 या 1000 टेस्ला। That is the ferromagnetic. So third classification is ferromagnetic substance which exhibit very strong magnetization in the direction of external magnetic field. Ferromagnetic. So the materials which are very strongly magnetized in the direction of external field. सर इस बार तो जेई के 4th अटेम्प्ट में चीटिंग हुई है। कैसे चीटिंग? सर 7 लोग पकड़े गए हैं। चीटिंग करने वाले तो हमेशा कर लेते हैं। सर दूसरे की जगह जाके एग्जाम दिया था उन्होंने पैसे लेके। वो तो खैर सदियों से चल रहा है भाई। सर यही किए, सोनीपत के ही थे। नहीं, वो पहले से भी चल रहा है। मेरा भी एक फ्रेंड गया आया था अपनी इंटर्नशिप से। वो उसका कुछ नहीं कर सकते। सर उनके चेक्स भी पकड़े गए 15 लाख के सबके। हाँ, कहाँ से खोल के न्यूज निकालते रहते हो भाई? सर तुम तो नहीं सोच रहे ना ऐसा कुछ करने का? नहीं सर। फिर करने वालों को करने दो। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, the substances which are very strongly magnetized। और ये एक स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स which are very strongly magnetized in the direction of external magnetic field। मतलब ये पैरामैग्नेटिक वाली ही प्रॉपर्टी है, बट 1000 times multiplied, 1000 times magnified in the direction of external magnetic field। दस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और उनके कुछ एलॉयज। वाई स्पेसिफिक दीज? क्योंकि इनकी जो ज्योमेट्री है वो मैच करती है। इनके क्रिस्टल की ज्योमेट्री इज सिमिलर टाइप निकल एंड देयर एलॉयज।
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक जैसा ही प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत हाईली मैग्नीफाइड। पैरामैग्नेटिक थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मेक इट 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स मोर। एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाते नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्या है ऐसा खास इनमें जिससे ये इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं? बिकॉज इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के एटम्स पहले से ही ग्रुप बना के बैठे होते हैं, जिनका एक वेरी हाई ऑलरेडी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। जैसे पैरामैग्नेटिक में सारे एक एक थे फ्री, इसमें 10 टू द पावर 9 टू 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, एटम्स का एक ग्रुप which is already in the form of a domain। इनका अपना एक ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। डोमेन में 10 टू द पावर 9 टू 10 टू द पावर 11 एटम्स का ग्रुप है, जिसका डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। ऑल द डोमेन्स, तो ऐसे बहुत सारे डोमेन है और ये सबके सब वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। बट इसका जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है, अगेन बिकॉज इस डोमेन्स आर नाउ रैंडमली ओरिएंटेड, कुछ द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, बहुत सारे डोमेन्स होंगे, सबकी अपनी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, but still the resultant is zero because again they are randomly oriented and they cancel out each other's magnetic field or magnetic dipole moment। करेक्ट। सो अगर हमने बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाई तो ये ऐसे कुछ रैंडम से ओरिएंटेड होंगे। सो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, इसलिए इसमें कोई मैग्नेटिक बिहेवियर ऑलरेडी नहीं होता है, मींस इट इज नॉट लाइक अ मैग्नेट। बट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट लाइक अ मैग्नेट बन जाते हैं एंड कॉजेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। आयरन को अगर मैग्नेट के साथ बांध के रख दोगे महीने भर के लिए तो वो खुद ही मैग्नेट बन जाएगा। In the absence of external magnetic field, all the domains are randomly oriented, resultant with zero, and therefore it does not have any magnetic dipole moment. Net dipole moment is zero because of these are random vectors। जब बाहर से फील्ड लगा देंगे, so when we apply an external field, उस फील्ड की वजह से डोमेन्स का या तो रोटेशन हो जाएगा या अलाइनमेंट हो जाएगा। अलाइनमेंट का मतलब ये जो बगल वाले हैं वो इसके डायरेक्शन में आ जाएंगे तो सबका साइज बड़ा हो जाएगा जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, जो नहीं है वो रोटेट कर जाएंगे। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, द डोमेन व्हिच इज हैविंग डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड वो बढ़ने लग जाते हैं और बाकी की बाउंड्री छोटी हो जाती है, यानी कि सारे ग्रुप मिलके एक बहुत बड़ा सा डोमेन बनाएंगे जिनमें all the dipole moments are aligned in the direction of external magnetic field। बाकी सारे डाइपोल्स का डोमेन्स का साइज छोटा हो जाता है। That domain size grows, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अलाइनमेंट में है, बाकियों का छोटा हो जाता है डायरेक्ट साइज। therefore net dipole moment is very strong।
आज के बाद करेंगे। नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, ठीक है। सो जब फील्ड नहीं थी तो 0 थे, अभी दिस बिकम वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। सो susceptibility is very very large, relative permeability is very very large, mu is very very large as compared to mu naught, b is greater than b naught। एक्सटर्नल फील्ड को ये बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं, स्ट्रांगली इंक्रीज कर देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। हाँ, प्रॉपर्टीज में भी सारे इंक्रीज होंगे और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हैं इन दी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पहली तीनों प्रॉपर्टीज तो सेम है, एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इस केस में सारी के सारे फील्ड लाइन ऑलमोस्ट पास होने लग जाएंगी टू दी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंक्रीज हो गई। दो चीजें बचती हैं इसमें, हिस्टैरिसीस लूप एंड क्यूरी-वेस लॉ, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 99%, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैं करा दूंगा तब तक बाय दी 20th। अल्टरनेटिंग करंट एंड केवल अल्टरनेटिंग करंट ये शायद ना टर्म 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है सर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है शायद, है? सर एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। चेक करो। और टेस्ट प्रेपडोर पे भी दे सकते हैं, अभी शाम को जिसको देना है कैन गिव इट ऑन प्रेपडोर। सर कितने रेडी बजे बस तक हो? बेटा वो आज तक के लिए लाइव है शायद, ओनली फॉर टुडे। नहीं सर 8 चैप्टर नहीं है। नहीं है ना, EM वेव नहीं है, ओनली अल्टरनेटिंग करंट तक है। सो Yes, sir. बाय द 20th ऑफ दिस मंथ विल ट्राई टू फिनिश इंडक्शन। इंडक्शन के लिए करीब 5 to 6 क्लासेस लगती हैं, सो आई थिंक 2 weeks after today class, and now Friday class will also be using for the syllabus. आपके डाउट्स होंगे तो ठीक है, otherwise we will be proceeding with syllabus, so don't miss Friday classes. सर पिछले चैप्टर के एमसीक्यू प्रोवाइड कर दो इसमें। सारे चैप्टर कर देंगे बेटा, एमसीक्यू तो एक बार थोड़ा होने दो, उसके बाद एमसीक्यू की रेल। सर जो टेस्ट है वो ऐप पर ही है। टेस्ट बेटा ऐप पर है, देयर आर 2 ऐप, एक प्रेपडोर वाला है और एक क्लास प्लस वाला है, A19 मीडिया वाला, दोनों पे 2 अलग अलग टेस्ट है, दोनों आपको देने हैं। अभी जो भी स्टार्ट करना हो यू कैन गिव इट। सर मेरे पास एक प्रेपडोर वाला भी है। 100+ पे 2 ऐप है, एक A19 मीडिया, एक प्रेपडोर। प्रेपडोर पे टेस्ट है और A19 मीडिया, दोनों पे टेस्ट है। अभी आपको A19 मीडिया वाला देना है, वैसे सुबह उन लोगों ने वो वाला दिया है। जिसको प्रेपडोर का देना हो, ऐसा 2 टेस्ट, प्रेपडोर वाला शायद आप आगे भी दे सकते हो, ओनली द A19 मीडिया इज लाइव टुडे, ठीक है। ओके सर। A19 मीडिया वाला देना है, प्रेपडोर वाला आप बाद में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।